دا نرالا ٹی وی دیکھنے والے سبھی درشکوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل دا نرالا ٹی وی پر۔ دوستوں جو آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں جسبیر بھائی ہیں فتح گڑھ سے۔ آپ کو بتانا چاہوں گا 4-5 مہینے پہلے سوشل میڈیا پر ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جسبیر بھائی کا ایک فیس بک پیج ہے جس پر انہوں نے جانے انجانے میں اسلام دھرم کے خلاف کچھ پوسٹیں شیئر کی تھی جس سے مسلم بھائیوں کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچی، جس پر ایکشن لیتے ہوئے امبیڈکر مسلم یونین نے بوڑیا تھانے میں جسبیر بھائی کے خلاف FIR درج کروا دی تھی۔ جسبیر بھائی کی اس غلطی سے ان کے بڑے بھائی کافی دکھی تھے۔ اپنے اس دکھ کو لے کر وہ مدرسہ فیض العلوم خانقاہ بوڑیا میں پیر جی جناب حضرت حسین احمد صاحب کے پاس پہنچے اور اپنے اس دکھ کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگنے لگے۔ پیر صاحب نے پوری بات جاننے کے بعد امبیڈکر مسلم یونین کے ممبرز کو بلایا اور اس معاملے کو سماپت کرنے کی بات کہی۔ آپ کو بتانا چاہوں گا آج 2 تاریخ کو یہ جو فیصلہ ہوا ہے، دونوں پکش بوڑیا مدرسے میں پیر صاحب کے پاس پہنچے جہاں پر جسبیر بھائی نے اپنی غلطی سویکار کرتے ہوئے سبھی سے معافی مانگی، جس پر مسلم سماج کی طرف سے انہیں معاف کر دیا گیا۔ اس میٹنگ میں پیر صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، نوشاد امادل پور، افضل، عبدالستار، سمیع، نسیم، عمران، مولانا معین الدین، ناظم، رضوان، حکم علی، الیاس، فرمان، سلیمان، امجد، منان، قادر بھائی آدی سبھی گنمانیہ ویکتی موجود رہے۔ اس سبھی کا کہنا تھا کہ اس قدم پر ہم سبھی جسبیر بھائی کو معاف کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، اور جسبیر بھائی نے بھی کہا ہے کہ آئندہ اس پرکار کی کوئی حرکت نہیں ہوگی جس سے کہ 2 دھرموں کے بیچ میں آپس میں دویش بڑھے یا کسی بھی طرح کے سمپردائک ماحول کو خراب کرنے کا ایک جو راستہ ہوتا ہے وہ تیار ہو۔ تو جسبیر بھائی نے سماج کے سامنے یا جو ایک ساروجنک روپ سے کہا جا سکتا ہے معافی مانگتے ہوئے اس اپنی غلطی کو سویکار کیا، جو ایک ان کا کہہ سکتے ہیں کہ بڑپن بھی ہے اور ایک نیتک کرتویہ بھی بنتا تھا۔ تو آپ بنے رہیں اس ویڈیو میں، کیا کچھ بات چیت ہوتی ہے آپ اس ویڈیو میں لگاتار دیکھ سکتے ہیں۔ اور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بات چیت ہوئی ہے بوڑیا مدرسہ میں ہوئی ہے۔ دوبارہ قبولی کرنا میں نے کہا آپ سب سننا ایسے بولتے ہیں کام کر دو اب ایک کام کر دو آپ اللہ کو جب بندہ اپنی برائی سے احساس نہیں کر لیتا، احساس بھی اللہ اس پر اللہ بڑا لگتا ہے۔ ایک شخص کو لوگوں نے بستی سے باہر نکالا، لوگ اس سے تنگ تھے، اس سے بستی سے باہر بیابان جنگل میں گھیر دی، چھوڑ دیا۔ وہ بڑا شرمندہ تھا کہ میری غلطیوں نے مجھے اپنی بستی اپنے گھر سے بھی دور کر دیا۔ جنگل میں اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، میں واقعی گناہگار ہوں، پاپی ہوں، اس کو تم کرو نا، بہت غلط۔ اس نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے لوگوں نے انکار کیا میری غلطیوں کی وجہ سے، میرے پاپوں کی وجہ سے لوگوں نے مجھے گاؤں بدر کر دیا، لیکن تو بڑا رحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو بڑا قصوروار ہوں۔ وہ تڑپ تڑپ کے کچھ دنوں کے بعد مر گیا۔ جب وہ مر گیا وہاں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اوتار کو جن کا نام موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں 5000 سال پہلے بات، موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے ماننے والے
चढ़ाई में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही दी, ओ मेरे ओ मेरे रसूल, एक मेरा बंदा जंगल में पड़ा है, जाओ उसे नहलाओ और गांव में ऐलान करो, जो इसकी नमाज पढ़ेगा उसे बख्श दो, जो इसकी नमाज में शिरकत करेगा जनाजे में उसकी बख्शिश कर दो। जब मूसा ने ये बात आगे सारे गाँव को लेकर मूसा बड़ा खबीस आदमी ऐसी बात कर रहे हो कि देखो भाई मुझे अल्लाह ने। तो मूसा ने फिर आवाज लगाई, 1,24,000 अवतारों में मूसा ही एक ऐसी नबी है जमीन पर खड़े हो गए अल्लाह से बात कर। फिर मूसा ने कहा मैं लोगों को कुछ और कह रही है, कहाँ ये ठीक है, लेकिन ये दिल से ताइब हो गया था, इसने दिल से माफी मांग ली थी, हमने इसे माफ कर दिया। माफी बहुत बड़ी चीज है, दिल से अंदर से। उस बंदे को भी माफी मिल गई जो दुनिया में निकाल दिया, बड़ा जालिम तो तौबा इसे कहते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्चाई पर कायम रखे। जल्दी की अजान हो गई। देखो इस बात को आप फिर जल्दी में ये कहूँगा कि जैसे ये सोशल मीडिया पे उड़ी थी, आप सोशल मीडिया पे ही ये बात कह दें, क्योंकि सुनने वाले सभी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब थे। और मेरे बात ये अर्ज करूँ कि जिस नबी की शान में ये गुस्ताखी हुई है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके मानने वाले दुनिया में इस वक्त दूसरे नंबर पर आबाद हैं। पहले नंबर पर ईसाई है, हजरत ईसा। दूसरे नंबर पे जो आबादी है दुनिया में इस्लाम के मानने वालों की है। कितने लोग होंगे, अरबों खरबों। अगर किसी ने भी ये वीडियो पढ़ी होगी, कितना दुखी हुआ यार, ये बंदा कौन है हमारे नबी को बुरा कहना। आप जिसको भी मानते हैं, जिस किताब को मानते हैं, जिस धर्म में आप यकीन रखते हैं, जिसको भी आपके दिल में आस्था है, अकीदा है, अगर उसकी शान में गुस्ताखी है, आप बहुत यार मेरे गुरु बुरा आपकी संभाल हो सकता है, और इससे फितना भी हो सकता है, इससे लोग आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, जो हुआ है गलत हुआ है, उसे हम सही करेंगे, आप भी हम भी मिलकर करेंगे, और हम माहौल अच्छा करेंगे, हम समाज में माशरे में भाईचारा कायम करेंगे। हम अपने अवतारों को, अपने नबियों को सिर्फ वही नहीं मानते, उनकी तालीमात पर अमल करेंगे। उन्होंने हमें क्या कहा, हमारे नबी ने फरमाया मोहब्बत मोहब्बत तो आम करो, मोहब्बत से रहो। सब इंसान अल्लाह का कुर्बा है, सबका भला करो, सबके साथ अच्छा करो, किसी को बुरा नहीं करो। बहरहाल हुआ जो बुरा हुआ, अब अच्छा करें। आप सब लोग, बस ये सब लोग भाई, मैं तो कुछ नहीं, ये सारे भाई सब, हम सब मिलकर एक हैं, सभी बैठे हैं, सभी भाई भाई हैं, इंसानी रिश्ता है, हम सब शर्मिंदा हैं। हमारे यहाँ ऐसा मामला पेश आ गया, अल्लाह ताला ऐसा कभी ना हो। आमीन। बोलो अच्छा। दो ही बातें करनी हैं हमें, तो कुछ दिन हाजिर नहीं हुए थे, उनके बाद उसी दिन करनी थी। बस हमें तो इनसे ये मालूम करना था कि जो मामला है तकरीबन 6 महीने पहले मामला पेश आया। उसके बाद एक दो साथी कहने से जब भी आमना सामना हुआ तो इन्होंने बेहुदा अल्फाजों का उस वक्त इस्तेमाल किया और अपनी कोटें भी उस वक्त भी लगाते रहे। चलो उनके जहन में नफरत थी,
आज ये माफ़ी मांगने आ रहे हैं 6-7 महीने के बाद। जब आ रहे हैं, जब पुलिस का इनके ऊपर प्रेशर आया, इनके ऊपर दबाव आया पूरे तरीके से, अरेस्ट करने तक की बातें हुई। और उस दिन जो इनकी फैमिली के लोग थे वो ये कह रहे थे कि डिप्रेशन में चले गए। अब ये इससे पहले डिप्रेशन में थे या डिप्रेशन में आए हैं, ये क्या मामला हुआ? मैं ना सबसे पहले आपको एक बात अर्ज कर दूं कि हम यहाँ बहस करने नहीं आए, बहस के, और ना हम इस वजह से आए हैं कि हम नफरत फैलाएं। हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, इसीलिए यहाँ आए। नहीं तो अगर हमारे जहन में या हमारे दिल में भी नफरत होती तो हम भी सोशल मीडिया पे गर्दो गुबार गालियाँ देते, हम भी इसी तरह भद्दे अल्फाजों का इस्तेमाल करते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमें खबर मिली कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मामले को ख़त्म किया जाए। हम उस दिन भी यहाँ आए, फिर आज का वक्त रखा गया, आज भी हम यहाँ आए। हमें मालूम ये करना है कि आपके जहन में जो था, मतलब अगर आप डिप्रेशन में थे तो फिर क्यों आप एक समाज को ही सिर्फ टारगेट करते गए? अगर डिप्रेशन था तो फिर क्यों आपने किसी दूसरे समाज के ताल्लुक से निकले? आपकी स्पेलिंग राइट है? मेरे को ना जी कुछ याद नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी एक बात सुनो, आप कितनी उम्र है आपकी? 48 के करीब। 48 के करीब आपकी उम्र है। आपकी जो पोस्टें हैं वो शेयर हो नहीं रखी। ऐसा नहीं है कि आपने वो पोस्टें शेयर की हैं, आपने लिख के पोस्ट की हैं। एक आदमी डिप्रेशन में है, चलो लगता है उसने एक पोस्ट की, ख़त्म हो गया, दूसरी पोस्ट की ख़त्म हो गया, तीसरी पोस्ट की ख़त्म हो गया। आप मुस्तकिल अपनी जो प्रोफाइल है ना वो आपकी बढ़ती गई, और एक से ज़्यादा एक नफरती पोस्ट आप डालते रहे। मतलब अगर ऐसा कुछ है कि आपके पीछे कुछ शरारती ऐसे लोग थे जो आपको उकसाते रहे, आप वो बात हमें बता दो कि भाई मैं तो सिर्फ मोहरा बनाया गया हूँ, मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया, मेरे पीछे वो लोग। जितना खोद दोगे उतनी बुराई जी। मेरा मानना है कि बंदा शरीर का बंदा है। देखो तकलीफ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के से निस्बत से उससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं जी, उससे बड़ी देश उससे पहले कोई साल पहले नहीं जी, मैंने कभी नहीं कहा। मैं आपके पास तो आया जी 2-3 बार, जाकर उनके साथ आया जी। अच्छा, एक बात ये है बच्चों कि जैसे कि पुलिस को कह रही है अच्छा तो कानून नहीं, लेकिन इनकी तरफ से मेरे पास एक बार बहुत बार कि हक्कम सिंह का हक्कम सिंह 10 बार तो आप आए, और ये मास्टर डॉक्टर साहब ये मेरे पास एक मरतबा तो मेरा ख्याल में 15-16 आदमी है रात को। तो ये उस वक्त की उसके बाद की बात है जब ये मामला आया कि जी आप बुला लो, माफी शादी कर लो, और भाई गलती हो गई, हम पूरा समाज शर्मिंदा है। बड़े बड़े जिम्मेदार थे, बिरादरी खानदान के लोग थे कि जी हमें बहुत शर्म आ रही है, हमारे आदमी ने ऐसा गलत हो दिया, और मेहरबानी करके इसे आप ये सोचा। मैंने कहा भी था मगर रुक जाएगी, लेकिन पर्चा दर्ज हो गया। मैंने ये बात कही थी कि पर्चा बाद में दर्ज करा लेंगे, पहले बात कर लें, क्योंकि ये पर्चा दर्ज होने से पहले भी आए, 3 बार आए याद है। उसके पर्चा दर्ज होने के बाद में ये 20 बार आए। यदि ये मसला है, जमुनानगर से भी मेरे पास चला आई, जगाधरी से भी आई, ये मामला नहीं हो पाता तो मुझे ठीक है, वो तो पर्चा तो दर्ज है ही, समझ लो, वो तो दरख्वास्त है, वो तो उस दिन से भाई मिल गए ना, अरे हमारी तरफ से तो माफ है, माफ। और इसे बात को खत्म कर दें, इंशाअल्लाह इसका फायदा इंशाअल्लाह। देखो माफ़ी मांगने से आपने माफ़ी मांगी, हम ऐसे लोग नहीं हैं, ठीक है। ये तो बहुत पहले हो जाता काम, जैसा माफ़ी बड़ा आज हो रहा है, ये पहले भी हो जाता। हमारा मकसद भी यही है कि ये जो नफरत वाला काम है
ये बंद होना चाहिए। हमारा मकसद यही है, हमारा मकसद कोई किसी को टारगेट करना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, किसी के साथ खुंदक नहीं है, हमारी दुश्मनी नहीं है। आपके कामबो समाज के बहुत हमारे जानकार भी है, संजीव है, एक यहीं पे की दुकान है, और उनसे पूछना हमारा उनके साथ कितना प्यार है, ठीक है। आपके वहाँ हमारा ऐसा भी है कि घर तक कांड जाना फतेहगढ़ के, ठीक है। हमारा मकसद ऐसा नहीं है, हमारा मकसद ये है कि जैसे भाईचारा पहले बना हुआ था और आगे भी ऐसे बना रहना चाहिए, उससे भी ज्यादा। एक बार जैसे आप लोगों ने माफी मांग ली तो आइंदा ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से फिर दिक्कत आए। बिल्कुल इस प्रकार से ये जो आज का माफ़ी मांगी गई है पीर साहब की अध्यक्षता में पूरी पंचायत चली और माफ़ी मांग ली गई है जसबीर के द्वारा। तो अब ये बात यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों, जो उनके द्वारा पोस्टें डाली गई थी।